Hi everyone, welcome to Orbital classes. How are you all? All good? Okay. So today I'm going to start a new brand chapter that is known as chemical kinetics, right? And it's carry a high weightage in IIT JEE and NEET as well, right? सो या इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, तो साथ में बने रहना है. एंड या दैट मीन्स हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पूरा टॉप लेवल पे जाएंगे. तो या चलिए स्टार्ट करते हैं. जी, व्हाट्स द चैप्टर नेम? द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट? व्हाट इज इट? Chemical kinetics. Okay. So first of all, see, what do you mean by actually kinetics? Kinetics means kinesis, which means movement, right? And what do you have to do in chemical kinetics actually? Chemical kinetics deals with the rate of a chemical processes, right? That means how fast reactions will be completed, right? And any chemical process may be broken in down into a sequence of one or more single step processes, right? Known as either a elementary processes or elementary reactions or elementary steps, right? Okay, what happened in chemical reactions? Old one actually broken and new bond is formed, right? And see, the feasibility of reactions is we can tell from the thermodynamics. And actually in chemical kinetics, what we have to do here, it deals with the rate of reactions and factors affecting them and mechanisms of reactions basically, right? And as you know, elementary reactions usually involve either a single reactive collisions between two molecules, right? And which we refer to as a bimolecular steps, right? Or dissociation, isomerism of a single reactant molecules. And like which we refer to as a unimolecular steps. And very rarely, under conditions of extremely high pressures, a tar molecular steps may occur, because collisions of more than three molecules will be improper, and proper orientations is not there. We'll get to know in the chapter that collisions will one theory is there that is called collision theory. Then you will get to know these things, that why more than tar molecular steps is not possible in chemical reactions, right? And in case of tar molecular, what will happen actually, which involves simultaneous collisions of three reactant molecules, as I told, right? An important point to recognize is that many reactions that are written as a single reaction equations, but in actual fact consist of a series of elementary steps. Those are basically called complex reactions, right? And this will be extremely important as we learn more about the theory of chemical reacts, right? And if I'm talking about as a general rule, right, elementary processes involve a transition between two atomic or molecular states separated by a potentials barrier. Like whenever reactant react with react, right, it should cross some barriers, right? To this potentials barrier, or sometimes it is called activations energy, right? The potential barrier constitutes the activation energy of the process, as I told, and determines the rate of at which it's occur actually. After overcome the activation energy, actually product will formed, isn't it? When the barrier is low, if the barrier is low, I mean the activation energy is low, then the thermal energy of the reactants will generally be high enough to surmount the barrier and move over the products, right? And the reactions will be fast. And however, when the barrier is high, that means when activation energy is high, only a few reactants will have a sufficient energy, and reactions will be much slower that time, right? Why? Because reactant will not have that much amount of energy via which it can cross the activation energy, which is the essential and main criteria to form the products, right? The presence of a potential barrier to reactant is also the source of the temperature dependence of the reaction rates, right? Which we'll learn in the chapter gradually, right? The huge variety of chemical species, types of reactions, and the accompanying potential energy surfaces
Involved means that the time scale over which chemical reactions occurs, covers many orders of magnitude. That it may be zero order reactions, it may be first order reactions, right? It may be more than that one. But in your syllabus, up to second order reactions is included. So yeah, from very slow reactions such as iron rusting, right? It is a very slow reactions, and to extremely fast reactions, for example, electron transfer process involved in many biological systems, right? Or combustion reactions occurring in flames, right? So what I have to do here, a study into the kinetics of chemical reactions is usually carried out with one or both of two main goals in mind. Number one things, analyze of the sequence of elementary steps giving rise to the overall reactions. That means the reactions mechanisms where, as I told, we are going to discuss here, right? And determinations the absolute rate of the reactions and its individual elementary steps, right? So basically, what happened here, as I told, this is the brief introductions about chemical kinetics. And listen, actually, as I told, kinetics means what? See, kinesis. Kinetics, what's coming from where? Kinesis, isn't it? Okay. Kinesis means movement. What is it? Movement, right? Movement. Okay. Now, see, there are many examples, right? ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेट्रोल विच इज़ ए वेरी फास्ट रिएक्शंस, राइट? व्हाट इज इट? बर्निंग ऑफ पेट्रोल, right? Some spoiling of food, right? Spoiling of food. Burning of petrol is obviously exothermic reactions, and these are the very fast process, right? Very fast process. Okay. Whereas burning of wood block, right? For example, burning of wood block, this one is also exothermic reactions. Spoiling of preserved food, right? Spoiling of preserved food, those are slow reactions. Rusting of iron, right? Those are what? Slow reactions. In chemical kinetics, you have to be consider that means हम classifications of reactions को कैसे करते हैं? That means there are certain reactions which are too slow. For example, rusting of iron, too slow, right? Rusting of iron, isn't it? And like precipitations by AgCl, by NaCl and AgNO3, right? Sorry, it's a fast reactions. For example, weathering of rocks. Okay, these are too slow reactions, right? Whereas instantaneous reactions is also there, that is too fast, right? For example, as I told, burning of petrol, spoiling of food, and you can take another example, that is detonation of explosives, right? Acid base neutralizations, precipitations of AgCl by NaCl and AgNO3, right? And third category of these reactions is which are neither too fast, or nor too slow, For example, combustions of H2 and HCl in presence of light, right? For example, combustion of H2 and Cl2 in presence of light, hydrolysis of ethyl acetate, right? Catalyzed by acid, decompositions of azomethane, right? Those are the examples which are neither too fast nor too slow. Basically, this kind of reactions we are going to deals in chemical kinetics, right? And listen, जो केमिकल फेनोमेनन होता है, राइट? केमिकल फेनोमेनन
केमिकल फेनोमेनन। बात सुनो, ये केमिकल फेनोमेनन क्या होता है? दैट मीन्स हम दो तरीके से डिफाइन, दो ब्रांच में स्टडी किया जाता है, बाई थर्मोडायनेमिक्स एंड बाई काइनेटिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखते हैं हम कि वी आर डील्स विथ एनर्जी चेंजेस, राइट, एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस अंडर ए गिवन कंडीशंस। दैट मीन्स एक गिवन कंडीशंस में रिएक्शंस होगा या नहीं, ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है, राइट। बट इन केमिकल काइनेटिक्स व्हाट यू हैव टू डू हियर, डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, राइट। दैट मीन्स कितना स्पीड में हो रहा है चीज़ें, एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस, और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म्स होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो व्हाट आई टोल्ड हियर, दैट मीन्स केमिकल फिनोमिनन को हम साइंस फिजिकल केमिस्ट्री के दो चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज वाई थर्मोडायनेमिक्स, वाई thermodynamics, right, and another one is why kinetics, why kinetics। देखो बात सुनो, बाय थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? देखो इसमें इसे डील्स विथ एनर्जी चेंजेस। व्हाट इज इट? डील्स विथ एनर्जी changes, right, and feasibility of a process, and feasibility of a process under given conditions, under given condition। एंड केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते क्या है? डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस, डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शंस, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, isn't it? And the mechanism of reaction, and mechanism of reaction। आई बात समझ में? दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है कि हम उधर ना एनर्जी चेंजेस के बारे में बात करते हैं, और किसी भी रिएक्शंस गिवन कंडीशंस में स्पॉन्टेनियस होगा, दैट मीन्स फिजिबिलिटी होगा या नहीं, वो चीज़ें बताते हैं। बट उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप में कौन आता है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स ये बताता है कि वो रिएक्शन जो हो रहा था, फिजिबिलिटी है, तो वो कितना स्पीड में होगा, राइट, रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट मीन्स पर यूनिट, दैट मीन्स टाइम कितना लगेगा, राइट, वेलोसिटी के बारे में बताता है, राइट, एंड कौन से चीज़ें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को मॉनिटर करता है, दैट मीन्स इफेक्ट करता है, राइट, एंड क्या मैकेनिज्म्स फॉलो करता है, इजंट इट? देखो For example, according to thermodynamics, that means diamond is possible to get converted into graphite. It is possible, right? According to thermodynamics, if I am particularly telling about, right? But in reality, the conversion rate is very much slow. That means very, very much slow, and the reaction, does not proceed at all, right? तो करते क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, ये पॉसिबल है। बट वही हम अगर इसका स्पीड देखें कि कितने स्पीड में हो रहा है, ऑलमोस्ट ये ना के बराबर है, राइट। सो ये चीज़ आपको लिखना है इधर, क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू TD, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स, राइट, this conversion, which conversion is, that means diamond and graphite, ये पॉसिबल है। बट वही हम केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा देखें तो क्या होगा? बट क्या होगा? इन रियलिटी
इन रियलिटी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से सारे कुछ बता नहीं सकते, राइट। तो उसका रेट भी देखना चाहिए, राइट। बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज़ वेरी वेरी मच स्लो, राइट। द कन्वर्जन रेट, द conversion rate is very much slow. That means ये बहुत slow है, isn't it? And the reaction does not proceed at all. And the reaction does not proceed at all, right? Okay. So सुनो अभी हम क्या पढ़ने जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो वो जो केमिकल काइनेटिक्स में हम जो रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शंस को दो भागों में स्टडी करेंगे। एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, राइट। मैक्रोस्कोपिक बोले तो वी डील विद द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, एंड चेंज इन देयर कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, राइट। दैट मीन्स हम सीधी सीधी बात करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करें तो, राइट। बट इन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, दैट मीन्स हम वो मोलिकुलर लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वी डील एट मोलिकुलर लेवल इंक्लूडिंग मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस, देयर एनर्जी एंड ओरिएंटेशंस ऑफ मोलिकुल्स। इन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर करोगे तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हायर क्लासेस के होगा, राइट। तो जितना हमें चाहिए, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट हम इधर यूज़ नहीं करेंगे, राइट। वो तो बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। तो हम इधर क्या करेंगे, कोलिजन्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो उस मोलिकुलर लेवल पे जाके जिसको हम पढ़ेंगे ना, उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। और मैक्रो पे क्या होगा, हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, मोलिकुलर रेट, राइट। इन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, देखो, तो हम इधर हेडिंग डालेंगे क्या, इन केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट आई डू एक्चुअली इन केमिकल काइनेटिक्स, in chemical kinetics reactions are studied at two levels. At how many levels? Two levels. And those are, see, number one, macroscopic level, macroscopic level. Another one is microscopic level, right? Okay, now बच्चों, ये होगा कौन सा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम करेंगे कि वी डील विथ rate of conversion of reactants into products, changes in their concentration, right? Changes in their concentration, okay। देखो etc, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। एंड सेकंड थिंग हियर, इन माइक्रोस्कोपिक लेवल व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी डील एट मोलिकुलर लेवल, at molecular level, right, including mechanisms of reaction, mechanism of
reaction, right? Their energy, their energy and orientation of molecules, and orientation of molecules. Basically I'm telling about collision theory, right? Molecules. Okay, सो हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट हेडिंग हम ये डालेंगे. सो जैसे कि हमने बताया क्या, या देखो बात सुनो, करेंगे क्या अभी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट. एक्चुअली ऑलरेडी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि रिएक्शंस को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि टू फास्ट रिएक्शन हो गया और टू वेरी स्लो हो गया, राइट. उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. जो मॉडरेट होता है, नेदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर बेसिकली, राइट. सो हेडिंग डाला क्या है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ reaction on the basis of rate, on the basis of rate, right. और रेट को नज़र में रखते हुए हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे. जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, आ जाओ उन चीज़ों को ना हम बारीकी से पढ़ते हैं. देखो बात सुनो, द फर्स्ट थिंग क्या होगा कि जो रिएक्शंस क्या होगा, स्लो और वेरी स्लो, स्लो और वेरी स्लो, राइट. देखो स्लो और वेरी स्लो का कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात सुनो कि जो स्लो रिएक्शंस होगा विद इन 10⁻⁻10 सेकंड, नैनो सेकंड, राइट, इसमें वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट. सॉरी नो, ये वेरी फास्ट हो जाएगा, राइट. स्लो क्या होगा, और वेरी स्लो का अगर हम एग्जांपल दे तो क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, वो बहुत सालों लग जाता है, राइट. दैट मीन्स वो रिएक्शन को स्टडी करने के लिए आप थोड़ी ना बैठे हुए हो, राइट. दैट मीन्स उस टाइप को रिएक्शन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर टाइम के साथ अभी इन चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करोगे ना, तो ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट दिखाएगा, राइट. तो उन चीज़ों को हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे. तो उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो क्या आएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट. रस्टिंग ऑफ आयरन, इजंट इट. ये क्या है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है. दैट मीन्स रिएक्शंस विच गेट कंप्लीटेड इन ए वेरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. और इट मे टेक्स मेनी ईयर्स, राइट. वेरी स्लो रिएक्शंस बोले तो क्या होगा, रिएक्शंस विच गेट कंप्लीटेड, reactions which get completed in a very long interval of time, in a very long interval of time, right. Okay, it may take many years as well. So if you're trying to draw the graph between time versus concentrations of reactant, right, that means वो क्या होगा, ऐसे होगा. देखो बहुत ईयर ले रहा है, राइट. अगर टाइम अगर आज सपोज टू भी 1 घंटा 2 घंटा रखोगे, राइट, एक रिएक्शन को स्टडी करने के लिए तुम थोड़ी ना 1 साल 2 साल बैठे रहोगे, पॉसिबल है ही नहीं हो, तो पढ़ेंगे ही नहीं, समझ रहे हो. हाँ सिंपल सी बात. देखो अगर ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, तो इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट ना क्या होगा, इंडिपेंडेंट दिखाएगा. क्या, इंडिपेंडेंट जी. तो इस टाइप को रिएक्शंस हम इधर क्या क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात, राइट. ओके चलो बढ़िया है, नहीं पढ़ेंगे हम, खुशी हो गई ना. देखो जो सेकंड क्लास का आता है इधर, सेकंड वो क्या होगा, फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस,
उदाहरण के तौर पे हम अगर इसको ले लेते हैं, किसको, जैसे कि हम बताए थे क्या, इंस्टंटेनियस reactions, right, too fast, that is detonation of explosives, acid base neutralization, right, detonation of explosives, detonation of explosive, isn't it? For example, acid base neutralizations, right, yeah, acid base neutralization, for example, and precipitation reactions, right, it may be precipitation reactions, reaction, right, that means होगा कि इसमें what will happen here, these are completed in a fraction of a second, right, these are completed in a fraction of second, in a fraction of second, that means रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट, तो उसका मैकेनिज्म्स के बारे में हम क्या ही डिस्कस करेंगे, राइट, दैट मीन्स इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, छोटा सा ग्राफ बन रहा हो, देखो इधर ऐसा करके ऐसा, दैट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो क्या होगा, देखो ये इंस्टेंटेनियस होगा, दैट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन इधर रहेगा, थोड़ी बहुत जाएगा, रिएक्शंस खत्म हो जाएगा, राइट, तो इसके बारे में हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, समझ रहे हो, ओके। जो थर्ड टाइप का होता है ना, वो चीज़ें हम इधर डिस्कस करेंगे, राइट, क्या है थर्ड टाइप का, वो क्या है जी, आ जाइए देखते हैं। थर्ड क्या होगा, मॉडरेट होगा, राइट, मॉडरेट होगा, मॉडरेट रिएक्शंस होगा, राइट, हाँ जी, मॉडरेट रिएक्शंस बोले तो फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ शुगर, राइट, एंड कंबशन ऑफ H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताए थे कि दोस आर neither too fast nor too slow, right, those reactions are basically we are going to study in chemical kinetics, right, okay, combustion, what is it, yeah, combustion of H2 and Cl2, right, in presence of sunlight or light, in presence of light, right, okay, and inversion of sugar, those are the example of moderate reactions। देखो मॉडरेट रिएक्शंस दैट मीन्स इस टाइप के कैटेगरी का भी हम इधर नहीं पढ़ेंगे, किस टाइप का, वेरी फास्ट रिएक्शंस का, तो हम इधर मॉडरेट का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, कौन सा ग्राफ, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या आएगा, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसा वेरी होगा, कैसे, ऐसे देखो, सपोज ये ले ले और ये वाला इधर है, तो ये टाइम एक्स एक्सिस पे है और इधर कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, तो ऐसा होगा। नाउ इसका ना क्या होगा, टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा, हाइपरबोलिक, दैट मीन्स दिस वन लाइक दिस। So this type of category of reactions we are going to study in chemical kinetics, right? So basically here what happen actually, moderate reactions बोले तो क्या होगा, these are reactions, these are reactions which are completed, right, which are completed in a certain interval of time, in a certain interval of time, आई बात समझ में,
तो उसको हम रिएक्शंस मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। व्हाट इज इट? बट that is types of a rate of chemical reaction। ओके, देखो ये होगा क्या, उससे पहले ना हम जैसे कि क्या पढ़ेंगे, एवरेज रेट पढ़ेंगे, राइट, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले हम समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है एक्चुअली, राइट। व्हाट इज इट? हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शंस। चलो बहुत बढ़िया, हम पढ़ेंगे उससे पहले क्या, थोड़ी सी बेसिक आइडिया लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जी पता होना चाहिए ना। अब इसका टाइप पढ़ने जा रहे हो तो उसको, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है वो पता नहीं है तो क्या करोगे, क्या ही करोगे जीवन में, बताओ। कुछ नहीं होगा। देखो जो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है कि ये वेलोसिटी के बारे में बताता है। दैट मीन्स पर यूनिट टाइम पे कितना चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, राइट। आमतौर पर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को रेफरेंस मानते हुए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्टेंट को ही लो, चेंजिन को, रिएक्टेंट को ही स्टडी करो, प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। बट ये बहुत ही मतलब आसान है कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करें तो, राइट। तो सिंपल सी बात, हम जब रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने जाते हैं ना, वी कैन डिफाइन दिस रेट ऑफ रिएक्शंस इन दिस वे दैट change in concentration, what is it, change in concentration of reactants or products per unit time। that means per unit time पे reactant और product का, either you have to talk about reactant और product, उसका concentrations कितना change हो रहा है, तो उस चीज़ का time, that means change in concentration of reactant or product divided by time taken to complete that reactions, right, to complete the change of that one। if you take the ratio of that one na, then you will get one kind of value that is called rate of reactions, right। so if I'm trying to define the rate of reactions, it simply defines as change in concentration, change in concentration of reactants or products per unit time, that is, what is it, this one, rate of reaction is basically equal to change in concentration of reactant or product, right, divided by time taken, ओके जी। चलो बहुत बढ़िया, सुनो, हम तेरी निगाहों में, इधर देखो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इसको ठीक करता हूँ। ओके हाँ, चलो जी, ये हुआ ये। तो देखो यूनिट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अगर पूछूं, क्या पूछूं, इसका यूनिट क्या है, यूनिट, सिंपल सी बात। देखो कॉन्सेंट्रेशन होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, राइट, तो उसका तो क्या होगा, मोल पर लीटर रहेगा। और समय का यूनिट क्या ले जाता है बताओ जी, पर सेकंड। और समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या है, मोल पर सेकंड। आई बात समझ में? मोल पर सेकंड, ओके। तो जैसे कि हम हेडिंग क्या डाले थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट, इन जनरल। तो क्या होगा, रेट को दो भागों में भगाया गया। एक तो क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस रेट, राइट।
सो बेसिकली ये जो for reactions, like if you consider this one for a reactions, for a reactions, which type of reactions? That type of reactions, right? Suppose reactant is converted into product G. Okay, तो इसको ना हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. कितने भागों में? दो भागों में. नंबर वन में क्या आएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा. एवरेज रेट. इस रिएक्शन का हम एवरेज रेट लिंक करेंगे. और एक होगा क्या नंबर टू पे? इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट होगा. ओके, नाउ बात सुनो. जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होगा उसमें क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, राइट. और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शंस डिफाइंड एट ए गिवन इंस्टेंट और मोमेंटरली इट्स डिफाइंड, राइट. सो प्लीज ट्राई टू डिफाइन द एवरेज रेट एंड दिस एंड ऑल. ओके, व्हाट इज इट? देखो बात सुनो. जो एवरेज रेट होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन depends over a given time interval, over a given time interval. आई बात समझ में? चलो बढ़िया है. इसी रिएक्शंस को हम ले अगर कि उदाहरण के तौर पे कौन सा हमने लिया है ऑलरेडी, कौन सा? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जी, राइट. रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. देखो बात सुनो, हम गिवन इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं. दैट मीन्स सपोज टू बी T1 टेम्परेचर पे जो R1 का कॉन्सेंट्रेशन है ना GOC1 है. चलो, और कुछ समय बाद जो T2 टेम्परेचर होगा ना, दैट मीन्स कुछ समय बाद उसका सपोज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर किधर गए? C2 में गया. तो जो R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, कैसा? इस रिएक्शंस के लिए अगर R एवरेज रेट डिफाइन करूँ मैं तो क्या होगा? हाँ जी, हाँ, वेट, या जो R एवरेज होगा, R एवरेज, इसको ऐसे दिखाएंगे. उसको डिफाइन ही किया जाएगा ऐसे करके. कैसा? दैट मीन्स टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टोटल change in concentration divided by total time taken, right? Total time taken. देखो इस रिएक्शन को अगर बात करो तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बताओ जी. सॉरी, तो टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ये C2 से, दैट मीन्स या we are going to define this one. That means change in concentration del C divided by del T, which is equal to what? Which is equal to, अरे यार रुको, C2 minus C1 divided by T2 minus T1, right? Okay. तो इसके लिए अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें को कैसा होगा, देखो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस को पढ़ते हैं थोड़ी देर में. इसको अगर कवर करने तो देखो, ये अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट्स करोगे तो क्या होगा? देखो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, ग्राफ से तुमको फंसाएगा. तो ग्राफ का क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है. तो इनिशियली इसमें करना क्या है? ग्राफ पे फोकस करना है, राइट. देखो ये होगा क्या? इसी चीज़ को हम ग्राफ में डिनोट करें तो क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा कुछ. ये है, ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, राइट. कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में. ओके जी. नाउ ये हाइपरबोला होगा एक. दैट मीन्स ऐसे करके किसके साथ डिक्रीज करेगा? समय के साथ.
किसका कॉन्सेंट्रेशन? हाँ जी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सपोज ये जो इधर का टाइम है इसको हम T1 मान लेते हैं। तो T1 पे ये जो एक वाई एक्सिस पे कटेगा ये C1 होगा, और सपोज इधर सपोज टाइम T2 है, राइट। तो इसमें क्या होगा? C2 होगा, राइट। तो देखो आर एवरेज क्या होगा? टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। देखो बच्चों, रिएक्शन का रेट कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, राइट। अगर ये तो रेट है, ओवरऑल रेट। अगर तुम प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो ये तो क्या आएगा? अगर हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में बात करें, देखो चीज़ ये है कि ये जो हो रहा है कौन से ये रिएक्शंस के लिए, अगर आर एवरेज हम लिखे, आगे जाके इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर इधर चेंज इन रिएक्टेंट के बारे में बात करें, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट का, तो पहले एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि देखो इनिशियली तो रिएक्टेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा T1 टेम्परेचर पे, सॉरी T1 टाइम पे। अगर टाइम बीतने के साथ साथ क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो हम चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो फाइनल का वैल्यू जब कम होगा और इनिशियल का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ों से जब सब्सट्रैक्ट होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शंस का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रिएक्टेंट के आगे एक नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होता है। आई बात समझ में? डेल्टी व्हेयरएस डेल एवरेज अगर किसके टर्म पे लिखोगे? प्रोडक्ट के टर्म पे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट इनिशियली जीरो रहता है और फाइनल क्या होता है? कुछ ना कुछ तो अमाउंट बनता ही है, तो फाइनल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल वन। सो इफ़ यू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वन, देन यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो हियर डेल प्रोडक्ट का होगा कॉन्सेंट्रेशंस, तो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसको बारीकी से हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डेल्टी आएगा। ये तो थोड़ा बहुत दिमाग में है तो बता दिया, ठीक है। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। आई बात समझ में? चलो हमारा बारी अभी कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? ये एक्चुअली क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टाइम टू अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस कॉन्सेंट्रेशंस वर्सेस टाइम, राइट। और ये द रेट ऑफ रिएक्शंस डिफाइंड होता है एट ए गिवन इंस्टेंट, दैट मीन्स बहुत ही एक पॉइंट में, जो दैट मीन्स बहुत ही कम समय के अंदर जो रिएक्शंस कंप्लीट होगा, दैट मीन्स रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वेरी होगा, राइट। उस रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कहा जाता है, राइट। सो इफ यू आर ट्राइंग टू डिफाइन दैट ऑन, दैट मीन्स इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन defined at a given instant, at a given instant। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज ये रिएक्शंस ले लो, तो क्या होगा इसमें ना? आर इंस्टेंट अगर लिखोगे ना तो क्या होगा? लिमिट टेंस टू जीरो आएगा, राइट। दैट मीन्स टी टेंस टू ऑलमोस्ट जीरो होगा, दैट मीन्स इसमें टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, राइट। सो आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डेल सी अपॉन डेल टी, वेयर टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए ना इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। और लिमिट लगाओ, लिमिट क्या होगा? टी टेंस टू जीरो आएगा, और उसके बाद क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम होगा। और बहुत ही कम समय में जो होगा ना उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो डी सी अपॉन डी टी, बेसिकली किसी भी ग्राफ में डी सी अपॉन डी टी क्या देता है? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ सी टी ग्राफ। व्हाट इज इट? दिस इज द स्लोप ऑफ सी मीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ,
का कॉन्सेंट, दैट मीन्स जो स्लोप होगा ना वही देगा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था चीज़ों को, तो हर एक कही हुई है बात, इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो किसी भी बातों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी डिटरमाइंड, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड एट दैट इंस्टेंटेनियस rate, right, can be determined, you know, from slope of a tangent, from slope of a tangent, right, at a time t, at a time t, right, on curve drawn for, which is drawn for concentration versus time, right। सो एक्चुअली इसका अगर हम ग्राफ में डेनोट करें तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, सुनो, ऐसे दिखेगा। देखो एक ग्राफ है, सपोज एक्स एक्सिस है, इधर हम इसको ले लें तो ये टाइम होगा, इसमें जा रहा है, तो इस वाई एक्सिस में क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेशंस लिया है, राइट। तो इसमें ना क्या होगा, ये हाइपरबोलिक चेंज होगा, राइट। दैट मीन्स इस पॉइंट में, एक किसी भी पॉइंट पे इसका अगर टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट क्या खींचना है? टेंजेंट खींचना है, राइट। तो उस टाइम पे टी कितना होगा? टी टेंस टू ऑलमोस्ट 0, राइट। सो ये जो स्लोप देगा ना, ये स्लोप है, तो ये स्लोप ही क्या देगा? आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शंस दे देगा, राइट। ओके, चलो बढ़िया। अभी ना हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उसके थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, राइट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, या दिस वन इज द ग्राफ इज देयर एंड वन वी कैन मेक वन क्वेश्चंस हियर। व्हाट इज इट? फ्रॉम द ग्राफ, which is denoted in the right side, right. So what do you have to here? Calculate the average rate between 400 to 800 second, right. Okay, and number 2 क्या है? Calculate the rate of reaction, calculate the rate of reaction at 600 seconds, right. So how to solve these questions, आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट। बहुत ही सिंपल है, देखो बात सुनो। एवरेज रेट कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है? देखो आर एवरेज कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में? जब टेम्परेचर दे रखा है T1 कितना ये है और T2 कितना है ये है, तो उस टाइम पे देखो कौन से 400, दिस वन एंड 800, राइट। 800 देखो 400 में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये कितना आएगा? ये है C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये है C2 कॉन्सेंट्रेशन, एंड देखो C1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कौन सा? ये वाला, ये हो कौन सा होगा? देखो यहाँ ये C1 होगा, और 800 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा वो? बताओ जी, वो C2 होगा, राइट। दैट मीन्स दिस वन। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to calculate
द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट मीन्स फाइनल कितना है 0.02 है माइनस 0.06 है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर्स, ये टाइम कितना है 800 माइनस 400, तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आएगा। देखो देखो ये रिएक्टेंट के टर्म्स पे बात कर रहा है, जैसे कि हमने बोला इधर आपको एक नेगेटिव साइन लाना है, राइट। तो ये नेगेटिव साइन और इधर क्या होगा, ये माइनस 0.04 आएगा डिवाइडेड बाई कितना आएगा 400, राइट। तो बेसिकली ना ये क्या आएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा कितना, ये या इट विल कम आउट हाउ मच 10⁻⁻³ यूनिट क्या होगा, मोलरिटी पर सेकंड, राइट, मोल पर सेकंड, ये इसका आंसर होगा, होने वाला था, राइट। ओके चलो यही आने वाला था इसका आंसर। ओके अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखना है, कितने पे लिखने को बोला है और लोगों ने, देखो ये 600 पे, तो 600 जीबी कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसमें एक स्लोप खींच दो, स्लोप इसमें अगर स्लोप खींचोगे ना तो ऐसा होगा, राइट। तो बेसिकली नंबर 2 पे करना क्या है, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस लिखना है, उसके लिए dc/dt आएगा, राइट। तो स्लोप क्या होगा, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका अगर स्लोप टेंजेंट वगैरह निकालोगे ना तो 0.85 डिवाइडेड बाई लाइक या इसका अगर स्लोप अगर निकालो ऐसे करके ना तो ये 82.5 आएगा, दैट मीन्स 82.5 मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि देखो रिएक्शन रेट्स एंड स्टोइचियोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा, मार्केट स्टडी। देखो स्टोइचियोमेट्रिक ना, ये जो रिएक्शंस होता है ना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम करने क्या जा रहा है अभी कि रिएक्शन रेट्स एंड स्टोइचियोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज इट, रिएक्शन रेट एंड स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री, राइट। देखो सुनो मेरी बात, बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वन, सो फर्स्ट आपको कुछ चीज़ें ना जनरलाइज करके सीखना पड़ेगा। क्या है वो, आइए हम डिस्कस करते हैं। द थिंग इज दैट वो चीज़ ऐसा है कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो दो वर्ड क्लियर करके ना हम स्टोइचियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शंस को रिलेट करेंगे, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री का रूल्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिखते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, समझ रहे हो। चलो तो अभी हेड 1 नंबर क्या लिखना है इसमें कि हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस। आइए हम समझते हैं इसको बारीकी से, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है कि ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, दैट मीन्स हम अगर इसको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वॉइस में लिखें तो ऐसा होगा। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है ना वो डिफाइंड होता है रिएक्टेंट्स के लिए। किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए। बहुत ही बढ़िया, दैट मीन्स साथ साथ बोलो किसके लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हाँ जी रिएक्टेंट के लिए, राइट। दैट मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस is defined for reactants only, is what, defined for reactants only, ओके। देखो हमने जब ग्राफ डिस्कस कर रहा था रेट ऑफ एवरेज रेट के बारे में, राइट, तभी लिखे थे कि देखो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे ना दैट मीन्स रिएक्टेंट के टर्म पे जब आप रेट लिखोगे, रेट एवरेज, तो वो रिएक्टेंट के आगे ना एक नेगेटिव साइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि देखो
टाइम के साथ साथ ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। आई बात समझ में? तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, देखो फाइनल वैल्यू लेस होगा इनिशियल वन से। तो अभी चेंज निकालो कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल वन, राइट। तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। अजी क्यों? अरे अजी ऐसे है कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो आई बात समझ में? तो आर एवरेज जो आएगा ना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ये नेगेटिव साइन भी दैट मीन्स हमें क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइन भी हमको इंडिकेट्स कर रहा है ये डिसअपेरेंस हो रहा है, राइट। डिसअपेरेंस ऑफ सी आर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, ये तो कैप्सूल बन गया। रुको एक मिनट, हम इसको ना गोला बनाते हैं। हाँ, और एंड रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे, वही माइनस डी सी टी, सॉरी डी सी आर डिवाइडेड बाई डी टी। आई बात समझ में? तो ये जो नेगेटिव साइन है ना बेटा, ये नेगेटिव साइन क्या हमें डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस के बारे में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी ना हम 2 नंबर पे पहुँचे थे। 2 नंबर पे हम सीखेंगे ये कि जो बी है, राइट, सॉरी जो बी है उस बी में क्या होगा कि या रेट ऑफ अपेरेंस क्या होता है एक्चुअली, रेट ऑफ अपेरेंस, राइट। देखो रेट ऑफ अपेरेंस डिफाइंड होता है किसके लिए, इट डिफाइंस फॉर प्रोडक्ट्स ओनली, फॉर प्रोडक्ट्स ओनली। आई बात समझ में? हाँ जी, चलो बढ़िया है। तो लिखो इसके लिए क्या होगा, आर एवरेज का जो लिखोगे ना वो क्या होगा, प्लस डेल सी पी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल टी होगा। ठीक है, और जो आर इंस्टेंटेनियस लिखते हो ये क्या होगा, प्लस डी सी पी डिवाइडेड बाई डी टी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हम अगर इसको समराइज करें, इसको ऐसे देखो, रेट जो होगा ना रेट, वो हम प्लस माइनस लिखेंगे और डी सी बाई डी टी लिखेंगे। और ये प्लस साइन क्या डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ अपेरेंस को। देखो, और सीधी सी बात इधर हम ये कंक्लूड करेंगे क्या, ये जो प्लस साइन है ना जी, प्लस साइन, ये इसको डिनोट कर रहा है कि आप रेट किसके टर्म्स पे लिख रहे हो, प्रोडक्ट्स के टाइम पे, टर्म्स पे, राइट। प्रोडक्ट्स के टाइम पे आप रिएक्शंस लिख रहे हो। और ये जो नेगेटिव टर्म है ना जी, इधर नेगेटिव टर्म, ये सिंपल सा ये बात रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि अपना कॉन्सेंट्रेशन किसका ले रहे हो, रिएक्टेंट्स का ले रहे हो। किसका? रिएक्टेंट्स का ले रहे हो। आई बात समझ में? ओके, चलो हम अभी स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट को कहाँ, रिएक्शन रेट में, दैट मीन्स रेट में इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, राइट। क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, चलो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्टोइचियोमेट्री अभी इधर घुसाने जा रहे हैं। देखो पाँचों हम एक जनरल इक्वेशंस लेंगे, दैट इज N1A प्लस N2V टू गिव व्हाट, टू गिव, हाँ जी, N3C प्लस N4D। ओके, देखो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, कौन सा, क्या, हाँ हाँ जी, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस, वो क्या होगा, ये होगा -1/N1। क्यों और कैसे हो रहा है, वेट फॉर मोमेंट, राइट। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन dt इज इक्वल टू, अगर N2 के टर्म्स में, दैट मीन्स B के टर्म्स में बात करोगे तो -1/N2 dV बाई dt इज इक्वल टू, प्लस प्रोडक्ट में आओगे तो प्लस साइन देना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने बोला, राइट। 1/N3 dC बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/N4 dd बाई dt। wait a moment, अरे यार, अच्छा, वेट दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, वेट फॉर मोमेंट, देखो एक्चुअली मन में आप लोगों के शातिर दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्या कि सर वाई वी डिवाइड, सी दीज आर व्हाट, दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट, दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई बात समझ में? चलो, तो हम करेंगे क्या कि डाउट आ सकता है कि वाई टू डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्वेश्चन ये है, आप लोगों का डाउट मन में ये सकता है, चलिए आना भी लज़मी है, आना भी चाहिए, राइट। डाउट ये आ रहा है कि हम वाई टू डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वाई टू डिवाइड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्चुअली वाई का आंसर इधर जुड़ा हुआ है, डोंट वरी, हम एक रिएक्शंस लेंगे और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, हम क्लास वाइंड अप करेंगे थोड़ी देर में। कि देखो एग्जांपल ले लो, सपोज वेरी कॉमन एग्जांपल, A to 2B to give what 3C, isn't it? देखो एट t इक्वल टू 0 पे हम मान रहे, एट t इक्वल टू 0 पे क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन A है और इसका कॉन्सेंट्रेशन B है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं, राइट। जब कुछ समय पर होगा एट t इक्वल टू t पे क्या होगा, A माइनस एक्स होगा, इधर क्या होगा, एक मोल से, देखो इसका एक मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका अगर x मोल डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो इसका 2 मोल होगा, दैट मीन्स ट्वाइस x, और इसमें 3 मोल x प्रोड्यूस होगा, इजंट इट? हाँ जी। नाउ आपको लिखना क्या है कि जो, देखो और एक बात, अगर n मोल के लिए, ये भी तो मोल रिप्रेजेंट करते हैं ना जी, n मोल के लिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे होता है, -dA/dt लिख सकते हो, राइट, इजंट इट? तो एक मोल के लिए क्या होगा, -1/N1 dA/dt होगा। आई बात समझ में? तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शंस किसको लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ ए लिखोगे तो क्या आएगा, देखो घर से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूँ, हर कोई इस डाउट को क्लियर नहीं करेगा, समझ रहे हो। मास्टर आएगा, यू बोलेगा, यू करो, ये करो, ये होता है, वो होता है, अरे होता है तो क्यों होता है, हर एक चीज़ों पे क्या होता है, हर एक चीज़ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या लॉजिक होता है, साइंस में लॉजिक के बिना कुछ भी नहीं होता। आई बात समझ में? देखो नाउ होगा क्या, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स पे हम रिएक्शंस लिखेंगे, वो क्या आएगा देखो बताओ, माइनस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल टी। देखो बच्चों इसमें हम ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेशंस माइनस तो आएगा इधर, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डी है, दैट मीन्स देखो ये क्या होगा, ए माइनस एक्स माइनस ए, क्योंकि
ये टी इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से ये वाला, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, और फाइनल टेम्परेचर टी है और ये जीरो है। तो इसका अगर करोगे ना तो क्या आएगा, देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा क्या इधर, हाँ जी, हाँ ये नेगेटिव साइन प्रॉपर इधर मल्टीप्लाइड होगा, राइट। दैट मीन्स होगा क्या इसमें, या सॉरी नॉट नेगेटिव साइन, यू नो नीड टू गिव राइट नाउ। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, ए से ए जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी आएगा, राइट। ए के टर्म्स पे बात करोगे तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका कहते हैं मतलब ये नहीं कि ये रेट नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन इधर यूज़ करेंगे, राइट, जो पॉजिटिव आएगा। मैं तो ये डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के दौरान क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, अगर इसी रिएक्शंस को बी के टर्म्स पे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी क्या आएगा, इस इक्वल टू, देखो एक मोल, जैसे कि इधर बोला हमने एन मोल के लिए कितना होगा डी बाई डी टी, एक मोल के लिए क्या होगा माइनस वन बाई एन डी बाई डी टी। तो इसको ना हम क्या करेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे, राइट। लिखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करना चाहिए, ऑब्वियसली डिवाइड करना चाहिए। इनटू क्या होगा, देखो इनटू क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो b माइनस ट्वाइस एक्स से b को माइनस करो तो इधर क्या रह जाएगा बताओ, हाँ जी 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी रह जाएगा, राइट। तो ये वाला कैंसिल आउट करो, ये भी क्या आएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी आएगा, राइट। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टी डिफाइन करो, क्या आएगा बताओ, हाँ जी ये आएगा प्लस 1/3 3 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये फाइनल है, ये इनिशियल है, 3x माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा 3x होगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये जो 3 है ना जी, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव के बराबर आएगा डी एक्स बाई डी टी। आई बात समझ में, हाँ जी, हाँ देखो बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद ही ये वैल्यू ना हमें ये मिला, देखो ये सेम वैल्यू मिले, सेम वैल्यू, ये वाला और ये वाला। पॉजिटिव साइन क्या डिफाइन कर रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, और नेगेटिव साइन क्या वाला है, रिएक्टेंट के लिए हो रहा है। दैट्स व्हाई यू आर डिवाइडिंग द, दैट मीन्स रेट इक्वल आ रहा है ना जी, इधर तो आपने इक्वली साइन कर दिया ना। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे तो इक्वल नहीं लिख सकते हो, आई बात समझ में, हाँ। तो नोट लिख के हम इधर एक चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, कौन सा चीज़ नोट लिखना है, नोट पे ये चीज़ लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड by dividing the ROD, rate of disappearance, or ROA, rate of appearance, by respective what is it, respective what, stoichiometric कोएफिशिएंट, राइट, ओके। देखो सिंपल सी बात, और एक बात याद रखना है इधर बड़े बड़े अक्षरों में, ये है कि देखो ये अगर कहीं माइनस डी ए वाई डी टी लिखा हुआ मिले तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए होगा। क्या होगा, कोई स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं है, तब क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए होगा।
अगर गलती से भी ये लिखा आता है 1/n1 dy/dt लिखा जाए तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, वी रिमेंबर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए होगा तब, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए होगा। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। देखो ये चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो, तो ये चीज़ें ना छोटे छोटे चीज़ ना आपको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, ये चीज़ें याद रखो। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करने जा रहे हैं। देखो हाँ, हमने क्या सीखा आज, ज़्यादा कुछ नहीं सीखे। ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में हम करते क्या है, क्या बहुत ही आसान चैप्टर है, हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस में हम क्या पढ़े कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, राइट। मैक्रोस्कोपिक में क्या है कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल ना, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक reactions mechanisms, right, and factors affecting of them, right. So basically हमने आज क्या क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, राइट, एंड देन कौन से रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन से टाइप का रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताए तो वेरी फास्ट रिएक्शंस होता है जो कि हमें जो हम स्टडी नहीं करेंगे चैप्टर में, और उसके बाद क्या होता है, कुछ बहुत ही स्लो रिएक्शंस होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और कुछ मॉडरेट रिएक्शंस होता है, दैट मीन्स व्हिच आर नेदर टू फास्ट और नॉर टू स्लो, दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डील्स विद द चैप्टर एक्चुअली। एंड या देन हमने क्या सीखा था कि रेट क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, राइट, हम उसको कैसे लिखते हैं, तो उस केमिकल रेट को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, राइट। अगर हम वेरी स्पेसिफिक होकर बोले तो एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किए। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस किए, राइट। उसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट्स करते हैं उसके बारे में कुछ हमने डिस्कस किए थे, राइट। एंड एक ग्राफ के थ्रू हम एक क्वेश्चन करवाए। तो फाइनली जो हम लास्ट में क्या पढ़े कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट, दैट मीन्स रिएक्शन रेट में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या रूल है, उस चीज़ों को लेकर पजल मत होना। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं कि या रेट ऑफ डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अपेरेंस का मतलब क्या होता है, वाई वी आर डिवाइडिंग whenever we writing what rate of reactions in terms of like in terms of rate of reactions, right, then we have to divide the stoichiometric coefficient in every species, then you should equate them, otherwise it's not possible, right. For that one we took one examples and very clearly I explained that one, that why we actually have to take that or why we actually divide the rate of reactions whenever you write very specifically differential rate of reactions, then you have to divide the stoichiometric coefficients. And finally we discussed that like rate can be calculated by dividing the ROD or rate of disappearance or rate of appearance by respective stoichiometric coefficients, right. अगर कहीं पे भी क्या है ये मिले कि कौन सा, दैट मीन्स अगर कहीं पे भी आपको ये मिल जाए कि -dy/dt है तो वो रेट ऑफ डिसअपेरेंस को रिप्रेजेंट्स करेगा। अगर उसमें उसका उस रिएक्शंस में जितना भी स्टोइचियोमेट्रिक रहेगा उससे अगर डिवाइड होके मिलता है तो उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ए डिफाइन किया जा रहा है। इतनी चीज़ें हमने सीखी, और इसके बाद जो आने वाला है ना चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको हम आने वाली क्लास में बहुत ही डिटेल्स में हम वेरी जज्बात के साथ और वेरी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टिल नाउ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट।